In last lecture we had studied the relation between coordinates and distances. So what is the relation between coordinate and distance? Generally it is calculated, distance is calculated by subtracting the smaller coordinate from larger coordinate. Listen once again. Distance is calculated by subtracting the smaller coordinate from the larger coordinate. 2 points, 2 distinct points will be given to you. दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग रहेंगे. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स अलग ही होंगे और ये दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे उसमें छोटा कोऑर्डिनेट हमें बड़े कोऑर्डिनेट से माइनस करना है. Whatever we are getting after simplification, that is the distance. The next part of this distance, this is very important point. Distance is a non-negative real number. तो what is meant by non-negative real number? Non-negative का मतलब एक तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो वो जीरो हो सकता है. तो पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे. तो अगर दो पॉइंट्स अलग नहीं रहेंगे या दोनों पॉइंट्स की पोजीशन सेम ही रहेगी, if the two points are not two distinct points, then the distance between them is 0. एक का कोऑर्डिनेट 3 है, दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट 3 ही है, तो 3 - 3 करने के बाद हमें 0 मिलेगा. लेकिन अगर दो पॉइंट्स अलग अलग होंगे तो वो दोनों पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. स्मॉलर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट लार्जर कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, व्हाटएवर वी आर गेटिंग दैट विल बी द डिस्टेंस. So in this way we can calculate the distance. It is always positive quantity, sometimes it will be 0. So let's take one example from exercise 1.1. Now see here. One of the number line is given to you. See page number 5 of your textbook. One number line is given to you and we have to find so many distances. So what is the number line? Now see here. This number line is given here and with the help of this number line we have to find some of the distances. Question is asked, find the distances with the help of the number line given below. Total कुल मिला के 8 questions दिए. Now see here the first one, distance BE find करना है. We'll take these examples. Distance BE. Now first of all we have to see here where is point B. See this is point B and where is point E? This is point E. तो B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है और E का कोऑर्डिनेट 5 है. दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिले. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B तो पहले लिखना है टू फाइंड डिस्टेंस B. पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस BE. दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम पहले लिखेंगे. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 and the coordinate of point E is point E का कोऑर्डिनेट 5 है. तो ये दो कोऑर्डिनेट्स में 5 कोऑर्डिनेट बड़ा है 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पे here 5 is greater than 2. हमें पहले लिखना होगा कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट से बड़ा है. Now see the next part we'll write here. Therefore अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, पॉइंट बी और पॉइंट ई के बीच वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. Therefore डिस्टेंस BE is equal to, ये माइनस करेंगे स्मॉलर कोऑर्डिनेट 5 - 2 is equal to 3. तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस BE कितने मिला, it is equal to 3. How can you write here? Therefore distance BE is equal to 3 लिखेंगे या sometimes we can write 3 units. ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा. So this is about your distance BE. Now the next is given here. We have to find distance
J A. So where is point J? The point J is here. The coordinate of point J is -2. And where is point A? Here this is point A. The coordinate of point A is 1. Now here we have to find this distance J A. ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है, छोटा कोऑर्डिनेट कौन सा है, वो पहले हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. Second, to find distance JA. Here, the coordinate of point J is, point J का coordinate है -2 and the coordinate of point A is, point A का coordinate कौन सा है, it is 1. लिखेंगे. अब यहाँ पे this 1 is greater than -2. माइनस नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे रहते हैं and therefore we can write here 1 is greater than -2. अब हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, -2. लार्जर या बिगर नंबर कौन सा है, दिस इज 1. तो हमें छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस करना है. Therefore, distance JA is equal to, बड़ा नंबर है 1, छोटा नंबर है -2. तो ये छोटा नंबर हम ये बड़े नंबर से माइनस करेंगे. दैट इज इक्वल टू 1 + 2. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 + 2 वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 3. अब लास्ट में हमें आंसर लिखना है. कैसे लिखेंगे आंसर, देयरफॉर कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस JA इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 3. अगर हम काउंट भी करेंगे तो सी हियर दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट. सिमिलरली इन प्रीवियस केस, इन फर्स्ट एग्जांपल डिस्टेंस BE कौन सा था, ये डिस्टेंस BE था. तो ये डिस्टेंस B इज इक्वल टू दिस 1 यूनिट, दिस 2 यूनिट एंड दिस 3 यूनिट. तो आवर आंसर इज करेक्ट एंड हेंस वी कैन राइट हियर दिस एज द नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ सी द third, fourth you do at home. Next example here we are taking, that is fifth, distance KO. Same here, I am only changing the names. बाकी तो हम as it is format में रखेंगे, change सिर्फ उनके coordinates हो जाएंगे. तो let's change that only now. Here we have to find distance KO. तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. Here this is point K and here this is point O. तो पहले हमें ये दोनों के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. The coordinate of point K is, point K का कोऑर्डिनेट है -3 and the coordinate of point O, KO का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो पॉइंट O यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 0. See here then, the coordinate of point K is -3 and the coordinate of point O is 0. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है वो पहले देखेंगे. -3 और 0 में लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ रहा है, वो नंबर छोटा होगा. राइट हैंड साइड पे कौन आ रहा है, वो नंबर बड़ा होगा. तो -3 एंड 0 ये दो नंबर्स में ये राइट हैंड साइड पे हैं
और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो -3 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तो वी कैन राइट हियर 0 is greater than -3. Here 0 is greater than -3 and therefore by finding this distance, अब distance कौन सा find करना है? Distance KO. Therefore distance KO, because that distance we have to find here, it is equal to larger coordinate, that is 0 minus smaller coordinate -3 and that is equal to 0. ये माइनस और ये माइनस कुल मिला के प्लस हो जाएगा 0 plus 3 and 0 plus 3 is equal to 3. What is our answer then? Distance KO. Therefore distance KO is equal to 3. सबके आंसर्स हमें 3 ही मिल रहे हैं यहाँ पे. Now see, this is all about our distance KO. And the last sum here we are taking, that is distance QB. Where is point Q? This is. And where is point B? It is. In the same way we are changing here. Now see. We have to find here distance QB. To find distance QB, क्या करेंगे? The coordinate of point Q, पहला point Q है तो Q का coordinate यहाँ पे है -5. The coordinate of point Q is -5. And the coordinate of point, next point कौन सा हमें लिखना है? That is point B. What is the coordinate of point B? It is 2. दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पहले हमें लिखने होंगे. अब ये दो पॉइंट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है और कौन सा कोऑर्डिनेट छोटा है, वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा. 2 is a positive number, -5 is a negative number. Therefore positive number always is greater than negative number. That is one point. And the second point, कौन सा पॉइंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ये साइड पे है, -5 ये साइड पे जा रहा है, तो -5 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इट इज नेगेटिव. दैट मीन्स वी कैन से इट इज अ स्मॉलर नंबर. 2 पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो इसके लिए वो बिगर नंबर, लार्जर नंबर. तो हियर वी कैन राइट हियर दिस 2 इज ग्रेटर देन -5 and therefore distance QB is equal to larger coordinate minus smaller coordinate. तो ये क्या होगा? 2 plus 5 is equal to 7 and therefore we can write here distance QB is equal to 7 लिखो या 7 units लिखो. तो this is all about our first question. इसमें 4 सबबिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, 4 सबबिट्स बाकी है. You solve it at home. Now see the second question. What is given here? See, the coordinate of point A is x. Point A का coordinate क्या दिया है? This is x. And that of B is y. दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दिए हैं, लेकिन ये देते वक्त डायरेक्टली डिजिट फॉर्म में नहीं दिए, नंबर फॉर्म में नहीं दिए. Those are given in terms of variables. And here we have to find distance AB. Distance AB find करना है. अब देते वक्त आपको क्वेश्चन क्या दिया है? x की वैल्यू और y की वैल्यू इन नंबर फॉर्म या डिजिट फॉर्म्स दिए. तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें एग्जैक्टली अभी दिए. तो विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल दीज कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 1 7 होगा, यहाँ पे -3 7 होगा, -4 -5 and so on like this. These are the x and y values. With the help of given values of x and y, we have to find here distance AB. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट y है. जो भी आपको दिए हैं उनके वैल्यूज भी आपके पास है, वो वैल्यूज वहां पे पुट अप करने हैं और अकॉर्डिंग टू अवर सेम प्रोसीजर लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करके हमें यहाँ पे ये भी वैल्यूज मिलेंगे. नाउ सी, तो
फर्स्ट एग्जांपल, here x is equal to 1 and y is equal to 7. डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, लेकिन देते वक्त x और y के वैल्यूज दिए हैं, तो लिखते वक्त हमें केयरफुली लिखना होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू x है, वो x से डिनोट किया है, हियर x इज इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B ये y से डिनोट किया है एंड द वैल्यू ऑफ y गिवन हियर दिस इज इक्वल टू 7. एज यहाँ ये दोनों वैल्यूज में 1 और 7 ये दो कोऑर्डिनेट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हियर 7 इज ग्रेटर देन 1. तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस AB then? Therefore, distance AB we are getting by subtracting smaller coordinate from larger coordinate. Therefore, distance AB is equal to larger coordinate 7 minus smaller coordinate 1, and that is equal to 7 minus 1, 6, and hence distance AB is equal to, you can write either 6 or you can write 6 units. So this is the exact our answer. So this is about first sum. Now let's see second. In the same way we are changing only. This is about first sum. क्या किया, x is equal to जो दिया था, y is equal to जो दिया था वो लिखा, लेकिन हमें डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे at the time of writing these coordinates we have to write the coordinate of point A and the coordinate of point B. जैसे दिए थे वैसे ही लिखे, बड़ा जो है वो लिखा माइनस छोटा किया, whatever getting that will be our final result. Now the next is x is equal to -3 and y is equal to 1. Let's take that example. See here, x is equal to -3 and y is equal to 7. तो यहाँ पे क्या होगा, the coordinate of point A is -3 and the coordinate of point B is that is 7. अब ये -3 और 7 ये दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो 7 is a positive number, -3 is a negative, तो always 7 is ग्रेटर देन -3. निगेटिव साइड पे जाने वाले नंबर्स माइनस जो होते हैं वो नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे ही रहते हैं, तो एज 7 इज ग्रेटर देन -3 therefore डिस्टेंस AB, यहाँ पे एज लिखेंगे, यहाँ पे हियर भी लिखेंगे, जो भी कुछ आपको इजी होगा यू कैन राइट. हियर 7 इज ग्रेटर देन -3 and therefore distance AB is equal to larger coordinate 7 smaller coordinate -3, minus minus plus हो जाएगा 7 plus 3 and here we are getting that is equal to 10 and hence this distance AB is equal to, you can write directly 10 or 10 units. So this is about the second example. It's very simple. डायरेक्टली हमें x और y के वैल्यूज दिए, a का कोऑर्डिनेट x है, b का कोऑर्डिनेट y है, जो दिए थे वो वैल्यूज लिखे. ये दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा नंबर और छोटा नंबर सिर्फ हमें यहाँ पे डिसाइड करना है, जो बड़ा आएगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे, whatever we are getting that will be your final answer. This is about your second sum. Now the next sum, what is x is equal to -4. तो यहाँ पे क्या होगा, this is equal to -4 and y is equal to -5. y की वैल्यू आएगी -5. वैसे ही हमें कोऑर्डिनेट चेंज करते जाना है. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू -4
y का कोऑर्डिनेट -5। अब मुझे बताओ -4 और -5 ये दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा होगा? नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर में ये 0 होगा, 1 2 3 4 5, ये -5, ये -4, -3, -2, माइनस यहाँ पे 1 2 3 ऐसे होते जाएंगे ये नंबर्स। ये -5 जो नंबर है वो ये साइड पे आया है और -4 ये साइड पे आया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे -5 आए और ये दोनों के नंबर, ये दोनों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये राइट साइड पे है। तो जो राइट साइड पे नंबर होता है दैट इज बिगर नंबर या दैट इज द ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर वी कैन से, एंड हेंस वी कैन राइट हियर -4 और -5 ये दो नंबर में वो साइड पे होने वाले नंबर्स हमेशा बड़े ही रहते हैं, लार्जर नंबर्स, बिगर नंबर्स, ये साइड पे होने वाले नंबर्स स्मॉलर नंबर्स वी कैन से। तो -4 इज ग्रेटर देन -5 एंड हेंस वी कैन राइट हियर दिस -4, इसमें से माइनस करना है छोटा नंबर, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5, तो -4 प्लस 5 क्या आएगा? -4 plus 5 that is equal to 1, and hence here we can write therefore distance AB is equal to 1, or we can say 1 unit. And now see the last example, that is x is equal to -3 and y is equal to -6। तो जो दिए है वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, x is equal to -3 and y is equal to -6। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a is x is equal to -3, पॉइंट b कोऑर्डिनेट क्या होगा? y is equal to -6। ये दोनों में भी जैसे हमने प्रीवियस नंबर लाइन स्टडी की थी, ये 0 -1 -2 -3 -4 और ऐसे करते जाएंगे, यहाँ पे कुछ तो -6 आएगा, ये -5 होगा एंड सो ऑन लाइक दिस। तो -6 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा होगा? ये नंबर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होगा एंड हेंस वी कैन राइट हियर -3 इज ग्रेटर देन -6 एंड therefore डिस्टेंस ए बी फाइंड करने के लिए लार्जर कोऑर्डिनेट -3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -6 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 6 अगर ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू +3 and therefore we can write here distance AB is equal to 3 or you can write 3 units. So this is about your last sum. In this way we had completed the first two questions of exercise 1.1. Now the next concept is of betweenness that we will discuss in next lecture. Thank you.